Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. In last lecture, we had discussed about carbohydrates, fats, protein. Now today we will discuss about vitamin. There are two types of vitamin, fat-soluble vitamins and water-soluble vitamins. Fat-soluble vitamins. Vitamins A, D, E and K are fat-soluble vitamins. Fat-soluble vitamins are stored in the fat tissues of the body and are used when needed. Water-soluble vitamins. Vitamin B complex and vitamin C are water-soluble vitamins. Since these vitamins are not stored in the body, these have to be supplied regularly through food. Now, फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो है हमारी बॉडी में बहुत दिनों तक स्टोर रहते हैं और जब बॉडी को ज़रूरत होती है तब हमारी बॉडी इसे यूज़ करती है. विटामिन्स ए, डी, ई, के ये सब फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं. वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर नॉट स्टोर इन आवर बॉडी. ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, मीन्स पानी में घुल जाते हैं, इसलिए यह हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते हैं, तो यह हमें रोज़ लेने पड़ते हैं. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी यह वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मीन्स ग्रुप ऑफ विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 and B12. We get good amount of vitamin D from the sunlight. When sunlight falls on the skin, certain reaction take place and producing vitamin D. Means हमें थोड़ा देर सनलाइट में बैठना चाहिए क्योंकि उसमें से विटामिन डी मिलता है. Minerals are needed for the formation of bones, teeth and red blood cells. Minerals help in proper functioning of the muscles and in maintaining normal heartbeat. Depending on the requirement in the body, minerals are divided into two groups, major minerals and trace minerals. मिनरल्स जो है हमारे बोन्स, टीथ और मसल्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए ज़रूरी है. इसे भी टू ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स. मेजर मिनरल्स. These minerals are required in large quantities by the body. For example, calcium, magnesium, potassium and sodium. मेजर मिनरल्स की हमें लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, मीन्स अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम. यह क्या है? मेजर मिनरल्स हैं. ट्रेस मिनरल्स. These minerals are required in lesser quantities by the body. For example, iron, zinc, copper and iodine. ट्रेस मिनरल्स की हमें लेस क्वांटिटी में मीन्स कम मात्रा में ज़रूरत होती है, जैसे आयरन है, जिंक, कॉपर एंड आयोडीन. यह ट्रेस मिनरल्स है. मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फिश, आयोडाइज सॉल्ट, फ्रूट्स, सीड्स एंड पल्सेस आर ए फ्यू सोर्सेज ऑफ मिनरल्स. तो यह सब हमें मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन वेजिटेबल, आयोडाइज सॉल्ट, फ्रूट्स, पल्सेस इन सब में से मिनरल्स मिलता है. रफेज और डाइटरी फाइबर. Dietary fiber, also known as roughage, consists of a group of complex carbohydrates such as cellulose. Although it does not provide any nutrient to the body, it should be included in our daily diet. It helps in bowel movements, that is, in removal of the undigested food from the body, thereby preventing constipation. Whole wheat grains, tomato, cauliflower, soya beans, orange and apple are a few sources of roughage. Now roughage is the undigested part of food and it helps in easy digestion. रफेज ऐसा फूड है जो हमें प्लांट से मिलते हैं जिसके अंदर रफेज होता है. रफेज एक फाइबर सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है,
तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। इससे हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज। यह हमें कब्ज होने से बचाता है, इसलिए यह हमें ज़रूरी है। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम होल व्हीट ग्रेन्स, टोमेटो, सोयाबीन्स, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा। इन सब में से हमें रफेज मिलता है। वाटर। Our body is made up of about 70% water. Water is required for all the body functions and to maintain the body temperature. It is a major component of blood and aids in digestion. The body loses water as sweat and urine, which help to remove toxins from body. To make up for the lost water, the body requires a constant supply of water throughout the day. Drinking about 8 to 10 glasses of water daily keeps the body healthy. Excessive loss of water leads to dehydration, which is harmful for the body and can sometimes be fatal. Other sources of water include fruits, vegetables and milk. Water is added to most cooked dishes. अब हमें न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ वाटर भी बहुत ज़रूरी है। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी फॉर ऑल फंक्शंस। We can live without food 2-3 days, but we cannot live without water. It transports nutrients throughout the body. It collects waste from different parts of the body and remove them from the body in the form of urine and sweat. हम विदाउट फूड तो रह सकते हैं, बट विदाउट वाटर हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वाटर हमारे फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। जो हमारी बॉडी में वेस्ट होते हैं उसे पसीने के थ्रू बाहर निकालता है और हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। देन वी शुड ईट वाटर इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क। दैट मीन्स वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर एक्सेट्रा, बिकॉज दे कंटेन वाटर कंटेंट एंड इट हेल्प्स इन आवर बॉडी फंक्शन। सो वी शुड drink 8 to 10 glasses of water every day. तो हमें रोज 8 to 10 glasses मीन्स 3 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। यदि हमारी बॉडी में पानी की कमी होगी तो यह हमारे लिए हार्मफुल है। सो वी शुड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर टू स्टे हेल्थी। बैलेंस डाइट, a diet that contains all the necessary nutrients in right proportion for us to stay healthy and fit is called a balanced diet. The composition of the balanced diet varies for different people based on their age, physical activities, gender and health. Growing children and pregnant women need more proteins as these help in the growth. People who do a lot of physical work need more carbohydrates as they have higher energy requirements as compared to an office worker or an old person. People who are unwell or recovering from an ailment should eat light and easy to digest food. They should drink plenty of fluids and avoid fat-rich food. That means we cannot eat only one type of food, right? We need different type of food. We eat all type of food every day. We should eat food which gives us all nutrients, means carbohydrates, fats, vitamins and minerals in right proportion for stay healthy and fit. इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। मीन्स हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में होने चाहिए, तो वो क्या है, एक बैलेंस डाइट है। अब जो लोग
ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जो ऑफिस में बैठकर काम करते हैं उन्हें कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जो बीमार होते हैं उन्हें लाइट खाना खाना चाहिए क्योंकि फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाए, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना चाहिए, मीन्स फ्रूट जूस लेना चाहिए। लेट्स सी फूड पिरामिड फॉर अ बैलेंस डाइट। इट इज़ यूजफुल टू प्लानिंग ए बैलेंस मील इज शोन इन द फूड पिरामिड। आपको फूड पिरामिड में बताया गया है कि हमें कौन सा फूड ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहिए और कौन सा फूड कम अमाउंट में लेना चाहिए। Food can generally divided into 4 groups. They are rice and cereals, then fruits and vegetable, then milk product, egg, meat, and then fats, oil, sugar and salt, etc. Food at the bottom of the pyramid should be taken in greater portion. फूड पिरामिड में जो सबसे नीचे है उन्हें हमें ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, जैसे राइस, होल ग्रेन्स, ब्रेड, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है। नाउ नेक्स्ट ऑन द पिरामिड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। दीज शुड बी टेकन इन लिटिल लेस देन प्रीवियस फर्स्ट ग्रुप। फिर हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो हैं फर्स्ट ग्रुप से थोड़ा कम मात्रा में लेना चाहिए। Next on the pyramid, milk product, eggs, meat. These should be taken in smaller amount than the previous 2 groups. Egg, meat ये हमें और थोड़ा कम मात्रा में लेने चाहिए। At the top of pyramid are the fats, oil, sugar, salt. These should only be consumed in small quantities. फिर जो सबसे टॉप का ग्रुप है ये हमें मिनिमम अमाउंट में लेना चाहिए, बिकॉज दिस फूड आइटम विथ मोर फैट्स एंड ऑयल इंक्लूड। देन यूज फूड पिरामिड एज ए गाइड टू स्टे हेल्दी। न्यूट्रिएंट रिलेटेड डिसऑर्डर। वी हैव लर्न दैट आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द रिक्वायर्ड अमाउंट्स। लैक or excess of nutrients in the body can lead to nutrient related disorder. Deficiency disorders. A person may be eating a lot of food, but the diet may not include sufficient quantities of all the required nutrients. No single food item can contain all the required nutrients. So, it is important to eat a variety of food items to get all the nutrients. The disorder caused due to the deficiency of one or more nutrients in the diet over a long time are called deficiency disorders. Means these diseases caused by deficiency means shortage of certain nutrients in our diet. For example, vitamins, mineral, protein, etc. So it's very important for us, we should eat all type of food to get all the nutrients. तो हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो। अगर हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो हमें डिजीज़ हो सकती है। उस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं, जैसे गॉइटर, स्कर्वी, मेरास्मस, रिकेट्स, ये सब क्या है? डेफिशिएंसी डिजीज। लेट्स सी इन दिस टेबल डेफिशिएंसी डिजीज एंड देयर सिम्टम्स। इस टेबल में कौन से विटामिन से कौन सी डिजीज होती है और उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं, वो बताया गया है। डेफिशिएंसी प्रोटीन्स। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्वाशियोकोर। सिम्टम्स थिन लिम्स, swelling of ankles, feet and belly, loss of muscles mass, sleeplessness, stunt growth, discoloration of hair. मीन्स प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर डिजीज़ हो जाती है। इसमें लिम्स पतले हो जाते हैं,
मीन्स हाथ पैर पतले हो जाते हैं, एंकल में सूजन आ जाती है, पेट में सूजन आ जाती है, मसल्स की कमी हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है और बालों का जो विकास है वो भी रुक जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। मरासमस, लॉस ऑफ मसल मास, स्टंट ग्रोथ, लॉस ऑफ बॉडी वेट, रफ स्किन, वीक लेग्स। मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन की कमी से मरासमस डिजीज हो जाती है। इसमें कमज़ोर हो जाते हैं, वेट लॉस हो जाता है, रफ स्किन हो जाती है, पैर कमज़ोर हो जाते हैं, बॉडी वेट कम हो जाता है। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, वीक बोन्स, टूथ डिके, वीक हेयर एंड नेल्स। कैल्शियम की कमी से दांत और हड्डियों के रोग हो जाते हैं। मीन्स बोन्स वीक हो जाती हैं और दांत सड़ जाते हैं और हेयर और नेल्स भी वीक हो जाते हैं। आयोडीन, गॉइटर, swollen glands in the neck, sluggishness, strain, mental and physical growth। आयोडीन की कमी से गॉइटर हो जाता है, नेक में स्वेलिंग आ जाती है, स्लगिशनेस मीन्स सुस्ती आ जाती है। आयरन, अनेमिया, पेलनेस, वीकनेस। आयरन की कमी से अनेमिया हो जाता है, इसमें स्किन पीली हो जाती है और कमजोरी आने लगती है। पोटेशियम, मसल्स क्रैम्प्स, वीकनेस, नॉइज़े, डायरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। पोटेशियम की कमी से मसल्स में क्रैम्प हो जाते हैं, मीन्स ऐंठन हो जाती है, इसके कारण कमजोरी आती है। नोज़िया मीन्स वॉमिटिंग होती है, डायरिया मीन्स दस्त हो जाते हैं और यूरिनेशन मीन्स बार बार यूरिन होती है। विटामिन ए, रेटिनॉल, loss of vision and skin problems. Vision becomes poor in darkness, something leading to night blindness, dry skin. विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है। इससे आँखों की रोशनी कम हो जाती है और स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, अंधेरे में दिखने में प्रॉब्लम हो जाती है और ड्राई स्किन हो जाती है। विटामिन बी1, थायमिन, बेरी, वीक मसल्स, वेरी लिटिल एनर्जी, लॉस ऑफ वेट। विटामिन बी1 का केमिकल नेम थायमिन है। इसकी कमी से बेरी हो जाता है, जिसमें मसल्स वीक हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, लेग में सूजन आ जाती है। विटामिन बी2, राइबोफ्लेविनोसिस एंड फोटोफोबिया, क्रैक्ड लिप्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, माउथ अल्सर्स, cracks at the corner of the mouth, sore throat, dryness and scaling of skin, eye become sensitive to bright sunlight। इसमें ज़्यादा प्रकाश को सहन नहीं कर पाते हैं, होंठ फट जाते हैं, जीभ में सूजन आ जाती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुंह के कोने में दरार आ जाती है, गले में खराश होता है, तेज़ धूप से आंखें सेंसिटिव हो जाती हैं। विटामिन बी3, नियासिन, पेलेग्रा, डायरिया, ड्राइंग ऑफ स्किन एंड इरिटेबिलिटी। विटामिन बी3 की कमी से पेलेग्रा हो जाता है, इससे दस्त हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है और चिड़चिड़ापन आने लगता है। विटामिन बी12, कोबालमिन, अनीमिया, लैक ऑफ एपेटाइट, पेल स्किन, लो स्टेमिना। बी12 की कमी से एनीमिया हो जाता है, इसमें भूख नहीं लगती है, स्किन पीली हो जाती है, सहन शक्ति कम हो जाती है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, बोन्स टेक अ लॉन्ग टाइम ऑफ हील। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, इसमें मसूड़े से खून आने लगता है, जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, घाव भरने में बहुत समय लगता है। विटामिन डी, minerals including calcium and phosphorus, rickets in children, osteomalacia in adults, rickets, deformed and weak bones, osteomalacia, bone pain and prone to fractures। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है। रिकेट्स में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, हड्डियों में दर्द होता है,
ऑस्टियोमलेसिया में हड्डियों में दर्द होता है और फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है। विटामिन के, ब्लीडिंग डिजीज, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग फ्रॉम बोन्स एंड डिकेइंग ब्लड क्लोटिंग। विटामिन के की कमी से खून बहने की डिजीज़ हो जाती है। घाव से खून बहता रहता है और खून के थक्के में देरी करता है।